So hello everyone, I welcome you in this SK Online Nation, and today is our personality development class. Personality development is a very big, field because we talk about our own development, the development of how we behave, how we talk, everything. But there is one more thing is very much important, and that is called listening. Listening is very important. Many people, they find listening, it's so simple, but I'm telling you, listening is the more complex thing in the world. In short, I'm telling you very important fact, and I know many of you will not believe it. M- in today's life, if you have any problem in today's life, in today's condition, if you have any problem, professional problem, personal problem, any problem, health problem, whatever, if you have any problem, chances are very high that problem is somehow linked to listening. You might not find it so relative, but this is the fact. If you are not a good listener, your success journey will be really challenging and very hard. Listening, right now you all are listening. Some are listening through YouTube. Some are listening through Facebook. Some are listening on the spot, live. Now, what do you think? Right now, if I talk about live, in this live training, there are 15 people who are listening me right now. You 15 are listening me. What do you think? You all are listening me. I'm the same speaker. You will not listen the same thing. Everyone will take me in a different way. And I'm going to give you a very good example. And that example is from Mahabharat. I think you all know Mahabharat. Most of you know Mahabharat, Bhagavad Gita, we all know that. In this picture, if you can understand, there are 4 different people are here. First, Sri Krishna, Arjuna. The person who is sitting below, he's Sanjay. And the one who is sitting on the sofa, उस जमाने का सोफा, he is Dhritarashtra. Dhritarashtra. If I tell you, ये महाभारत कौन जीता था? The answer is very important. The answer is very easy. Pandav. It was a fight between Pandavas and Kauravas. But Pandav ने क्यों जीता था? आप लोग बोलोगे, it was because of Sri Krishna. Of course, Sri Krishna अगर नहीं होते, वो अगर अर्जुन को सही से सजेशंस नहीं देते, देन अर्जुन के लिए डिफिकल्ट होता और अर्जुन लड़ नहीं पाता. एंड एनीवे, it would have been very difficult for Pandava to win. But I will say it is not the story of Sri Krishna giving suggestions to Arjuna. It is also the story of Arjuna, who was listening to Krishna. When Arjuna was listening to Krishna, Arjuna was not only listening and understanding, Arjuna was following everything, whatever he was being taught or whatever he was being told by Krishna. जो भी कृष्णा को बोला जा रहा था, कृष्णा अर्जुना को बोल रहे थे. अर्जुना जब उनको बहुत अच्छे से सुन रहा था, he was listening it very attentively, and not only listening it, Arjuna surrendered himself in front of Arjuna.
उन्होंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया था, दैट श्री कृष्ण यू टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल डू वॉट एवर यू से. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, when you listen others, when you listen others, do you surrender yourself? Think about it. When you listen to others, do you surrender yourself? That yes, tell me what you want to tell me, I really want to listen you. ऐसा हम लोग करते हैं. उल्टा हम लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ. हम लोग लैपटॉप में काम कर रहे हैं एंड मेरी वाइफ आती है तो हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, आई एम डूइंग माई वर्क, यू टेल मी, मेरा कान तुम्हारे तरफ ही है, इट्स ओके. दिस इज नॉट सरेंडरिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट. आप बोलोगे नहीं सर, कभी कभी सरेंडर करते हैं, कभी कभी नहीं करते. तो कभी कभी मतलब फिर तो वो 50-50 हो गया. इसका मतलब है कि आप तय करते हो कि कब सरेंडर करेंगे, कब सरेंडर नहीं करेंगे. अगर हस्बैंड बोल रहा है तो यार उसका काम है बोलना, काहे को सरेंडर करें. अगर बॉस बोल रहा है, हाँ डेफिनेटली सुनना पड़ेगा. बॉस है भाई, पैसा नहीं आएगा, मेरा सैलरी नहीं देगा. सो यू आर नॉट अ लिसनर, यू आर अ सेलेक्टिव लिसनर. आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे कब सरेंडर होना है, कब नहीं सरेंडर होना है. So that's what I'm saying, if you become a good listener, you will always try to be a good listener. Always. आपको पसंद आए ना आए, आप अच्छे से सामने वाले को सुनोगे. देखो राइट नाउ आई एम टॉकिंग एंड आई वांट कि लोग मुझे सुने. आई रियली वांट दैट यू ऑल शुड लिसन मी. बट मैं आपको जोर जबरदस्ती बैठा के तो रख सकता हूँ क्लास में, लेकिन सुना नहीं सकता. आई कैन मेक यू सिट इन द क्लास. आप भी बैठोगे भाई, पैसा दिया है, बैठना तो पड़ेगा ही. बट आप सोचो कि अगर पैसा नहीं देते आप, तब बैठते आप लोग. थिंक अबाउट इट. इसका अगर बैठते तो कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग अ गुड लिसनर. अब बात है कि जितने अच्छे से, जितने सरेंडर के साथ यू आर लिसनिंग मी राइट नाउ, क्या आप सबको इतने सरेंडर होके सुनते हो? चांसेस आर वेरी लेस. चांसेस बहुत ज्यादा होगा कि आप बोलोगे नहीं सर, कभी अगर वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या मेरे से बहुत सीनियर है, देन वी पे मोर अटेंशन. बट इफ वी डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, और मेरे को पसंद नहीं है, उसको हम लोग नहीं सुनते. So guys, if you are a good listener, you will listen everyone, even if you like it or you do not like it, because you are a listener, and it is your habit to listen people. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और क्यों सुनोगे पता है? क्योंकि अगर अर्जुन became a good listener and won Mahabharat, so you imagine if you become a good listener, you can also win your life battle. आपके लाइफ में भी बहुत परेशानी है, आपके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है. If you really want to get out from your problem, you have to be a very good listener, guys. आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा. So whatever Krishna was telling, Arjuna was listening. Not only listening, Arjuna was doing it. अर्जुन कर रहा था जो भी उसे बोला जा रहा था. अब चलो दूसरे पिक्चर में आते हैं, जहां पे संजय और धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं. Look at the Sanjay. संजय also कृष्णा और अर्जुना की बातें सुन रहा था. संजय जो बैठा हुआ है, he was also listening कि भाई ये लोग अर्जुन और कृष्णा मिलके क्या क्या बात कर रहे हैं. इसका मतलब है जो कृष्णा बोल रहे थे वो अर्जुना के साथ साथ संजय को भी सुनाई दे रहा था, बिकॉज ही वॉज लिसनिंग. बट संजय का काम उसको यूज करना नहीं था. संजय का काम था एक कान से सुने, धृतराष्ट्र को सारा इंफॉर्मेशन बोले. मेरा काम इतना ही है. वाई शुड आई वर्क? मुझे थोड़ी बोला जा रहा है, ये तो अर्जुना को बोला जा रहा है. सो लेट्स अर्जुन डू इट. मेरा काम है अर्जुन और कृष्णा की बात सुनना,
और धृतराष्ट्र को बोलना और दूसरे कान से निकाल देना। सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं, सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र सुन रहा था, लेकिन वो क्या सुन रहा था? वो संजय को ये बोल रहा था कि संजय, यू डोंट टेल मी अबाउट कि पांडव क्या बोल रहा है, पांडव जीत रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ कि कौरव जीत रहा है कि नहीं। टेल मी कौरव क्या कर रहा है, कौरव। सो धृतराष्ट्र वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पांडवा जीत रहा है कि नहीं, पांडवास क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र वॉज मोर कीन इन टू लिसनिंग कि कौरवास क्या कर रहे थे। मतलब धृतराष्ट्र भी सेलेक्टिव लिसनर थे, उनको वही सुनना था कि कौरवा जीत रहा है कि नहीं, पांडवा नहीं। सो गाइस, इन दिस वन एग्जाम्पल, यहाँ पे in this one picture you can see that Arjuna is an attentive listener. Sanjay was a listener, but he was listening and he was speaking and he was forgetting. And Dhritarashtra, he was only listening. जो उसको अच्छा लग रहा था वही सुन रहा था, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, he was ignoring that fact. And we all know at the end what happened. At the end, Pandavas won. This is the power of listening. This is the power of listening. And this is the fact, guys. Listening is the only activity which can give solution to all big problems in life. If you will become a good listener, you will see your so many problems will be resolved. But we are not a good listener. हम लोग बोलते हैं, हम लोग को लगता है नहीं भाई, मैं तो सुनता हूं सर, I listen. बट आज जब हम एक टेस्ट को करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप क्या करते हो और आपको क्या करना चाहिए. So guys, today our topic is listening. And I'm telling you, if you become a good listener, your relationship will improve. आपका relationship better होगा. Your friendship will be better. Your you will have more knowledge, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनोगे और ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे. ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे, यू विल बी मोर नॉलेजेबल. आप ज्यादा नॉलेजेबल रहोगे तो आप अपने लाइफ में डिसीजंस अच्छे ले पाओगे. ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे तो आपका लाइफ बेटर वे से चेंज होगा. सी कितना रिलेटेड है, देखिए. इफ यू बिकम अ गुड लिसनर, यू विल बी मोर नॉलेजेबल. If you become more knowledgeable, you will take good decisions in your life. If you take good decisions in your life will be much better. See, today, आज के डेट में आपका लाइफ कैसा है? Think about it. No need to tell me. Either you are happy or you are not happy. And why you are happy? Why you are not happy? Because you had taken some decision in past. वो decision के लिए ही आप खुश हो, या उस decision के लिए ही आज आप दुखी हो सकता है कुछ तो डिसीजन आपने लिया है अपने लाइफ में. तो वही बात आ गई ना, आपका डिसीजन जो आपने लिया था उसके लिए एक नॉलेज की जरूरत थी. अगर वो नॉलेज नहीं था, देन आज का लाइफ आपका बहुत, आप अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आपने डिसीजन ही गलत लिया था. ठीक है भाई, अब पास्ट में तो नहीं जा सकते. नाउ वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ कि भाई अब अच्छे से सुनेंगे, so that I can learn more and I can take some good decision in my life. याद कीजिएगा, Arjuna was a good listener and that is the reason उसको अच्छे बुरे का पता चला कि क्या सही है क्या बुरा है. Arjuna was asking to Krishna कि भाई how can I kill my brothers? Then Arjuna said, it's not you are killing a brother. It's the soul of the body that is there and it will never die. You are killing the action, the negative action your brothers are doing. So by killing them, you are basically doing good for the society. So guys,
ये नॉलेज उसको नहीं था, इसीलिए ही वॉज नॉट एबल टू फाइट। जैसे ही वो नॉलेज आया क्यों? बिकॉज ही वॉज अ गुड लिसनर। So he listened, so he could take the right decision. So he took the right decision. We all know, finally, Pandava, they won the Mahabharat. So guys, this is very important. ये बोलना जरूरी है। टेस्ट तो भाई 5-10 मिनट का टेस्ट है, बट आप ये टेस्ट क्यों दोगे? आप दोगे because it is very important to be a good listener in today's time. So guys, please be ready, because now we will see how effective listener are you. आप कितने अच्छे लिसनर हैं, आज ये साबित हो जाएगा। एंड आई वांट कि सब अपना अपना स्कोर, आज जिसका भी जो भी स्कोर होगा वो अपने ग्रुप में जरूर डालेगा, ताकि सबको पता चले आप कितने अच्छे लिसनर हो। आप नहीं डालोगे तो मैं डालूंगा। Okay, so it's not about sending the marks, it's all about कि आज आपको जो मार्क्स मिलता है, हम लोग ये इस टेस्ट को हम लोग फिर 2-3 महीना बाद करेंगे, एंड वी विल सी कि कोई चेंज आता है कि नहीं आपके स्कोर में। If there is a change in your score, it means you are changing something in your life. Okay, now very important thing I would like to say, please pay attention. Your listening skill assessment is going to be started, so please be ready with your pen and paper. Do not write the question. कोई question नहीं लिखेगा. You will just write the answer. This session is being recorded, so अगर किसी को question चाहिए तो वो बाद में recorded form को देख लेना. But right now, please focus on the live session. आपका जो आंसर होगा, your answer will not be कि क्या, देखो वहां पे हर क्वेश्चन के 4 आंसर हैं. Please listen. There is no right or wrong answer. Huh? There is no right or wrong answer. 4 आंसर है. जो आंसर आपको लग रहा है कि ठीक है, is right, आप उसमें टिक नहीं करोगे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप उसमें टिक नहीं करोगे जो आपको सही लग रहा है, आप उसमें टिक करोगे जो आप करते हो. आर यू गेटिंग दिस? आप करते क्या हो उस पे टिक लगाना है, उस पे टिक नहीं करना है कि अच्छा अच्छा ये सही लग रहा है मेरे को, ये टिक करे. नो, आप वहां पे चारों सही है, ऑल 4 आर राइट. आप क्या करते हो उस पे टिक लगाओगे. What you feel you do, you will tick on that. Okay, guys, let's go ahead. All the best to you. Hope the result shows that you are a very good communicator. You are a very good listener. The first question, all the questions will be on the screen for 1 minute. 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा क्वेश्चन. So आप क्वेश्चन लिखो कि आंसर लिखोगे, it is up to you. But ये दिमाग में रखना कि आपको सोचने का भी तो मौका मिलना चाहिए. So I am giving only 1 minute and I will not come back. Please, I'm not going to come back. So guys, please listen me. मुझे अच्छे से सुनिए. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा उस क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. I'm having my phone ready right now. So I'll go as per what I am telling you. 1 minute for each question. After I make you understand what is that question. Okay? पहले मेरे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही लिखिएगा. ऐसा ना हो कि मैं समझा रहा हूं और आप लिख रहे हो. नो, प्लीज लिसन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई पोजीशन माई सेल्फ so that I can hear clearly to my client. क्लाइंट के जगह यहाँ पे स्पीकर भी हो सकता है. मतलब यहाँ पे माई क्लाइंट, यहाँ पे कस्टमर, ये सब वर्ड इज बेसिकली द स्पीकर. उसको आप स्पीकर समझिएगा. ठीक है? I position myself so that I can hear clearly to my speaker. Answer: always, often, seldom, never. Please understand this question. जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप अपने आप में अपने पोस्चर को, अपने बॉडी को चेंज करते हो.
आप अपने बॉडी को चेंज करते हो। जैसे मेरे बगल में कोई मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, और मेरी बॉडी ऐसे है, लेकिन जैसे ही वो मुझसे बात किया तो मैंने अपना पोजीशन को चेंज किया और मैंने उसके साथ उसके पोजीशन से अपने पोजीशन को मिलाया। तो मैंने अपना पोजीशन चेंज किया। सपोज मेरे सामने somebody is talking to me and he is standing, वो खड़ा हुआ है और मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं जब उसको सुनने जा रहा हूं तो मैं भी खड़ा हो गया क्योंकि वो भी खड़ा है, तो सेम लेवल में हम उसे सुन पाएंगे। तो मैंने अपने पोजीशन को चेंज किया। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी मैं किसी को सुनता हूं मैं अपने पोजीशंस को चेंज करता हूं सो दैट आई कैन लिसन दैट पर्सन मोर इफेक्टिवली। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा हमेशा करते हो, ऑलवेज? अगर आपको लगता है हमेशा आप करते हो तो ऑलवेज पे टिक कीजिए। इफ यू थिंक कि ज्यादातर करता हूं, ऑफन आई डू दैट, सो ऑफन में टिक कीजिए, आप अपने कॉपी में ऑफन लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत कम करता हूं, बहुत ही कम, तो सेल्डम लिखिए। इफ यू फील भाई मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि अरे सुनते तो कान से हैं, ऐसे बॉडी को भी चेंज करना पड़ता है, I have never thought, so your answer will be never. So I believe you have understood the questions. If you have any doubt, you can raise your hand. So guys, whenever you listen, you change your position. You do it always, often, seldom, or never. Think about it. अब मैं अपने बॉडी में चेंज करता हूं ताकि मैं उसको और अच्छे से सुन पाऊं। Okay, so let's go for the next question. पहले अंडरस्टैंड करना, फिर you write the answer. I paraphrase what the client has said to check understanding. I paraphrase. मैं पैराफ्रेज करता हूं या करती हूं सो दैट मैं सामने वाले को और अच्छे से समझ पाऊं। गाइज, व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है, सपोज संध्या जी मुझे बोलते हैं कि सुभाष सर कल आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से आपको स्टेशन से मेट्रो मिल जाएगा, आपको मेट्रो से आपको पंजाबी बाग जाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक होटल मिलेगा, उस होटल में जाके आपको इस इंसान के साथ मिलना पड़ेगा। तो कुछ कोई मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, होता है ना आपके लाइफ में भी बहुत समय आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप बाजार जा रहे हो ना, तो ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना। सो मेनी पीपल दे गिव इंफॉर्मेशन। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि जैसे वो इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया, मैंने रिपीट उससे पूछा, तो ओके संध्या जी आप चाहते हो कि मैं दिल्ली जाऊं, वहां से मैं मेट्रो पकड़ के पंजाबी बाग आऊं, फिर मैं वहां पे वो होटल पे जाऊं, उस इंसान से मिलूं और ये चीज उसको दे दूं। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिपीटेड द इंफॉर्मेशन वॉट एवर आई वॉज टोल्ड। I repeated the same information and I told to that person. इसी को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स यू रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन सो दैट सामने वाले को लगे कि हाँ आपने अच्छे से सुना है। तो क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं पैराफ्रेज करता हूं, तो क्या आप पैराफ्रेज हमेशा करते हो या ऑफन करते हो, मतलब ज्यादातर करते हो? हमेशा नहीं बट ज्यादातर करता हूं, बहुत ही कम करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। There are total 14 questions. Okay, let's go ahead. Number 3. I observe the client body language. मतलब client मतलब कोई भी जो मुझसे बात कर रहा है. If somebody is talking to me, I observe the body language. मैं उसको सिर्फ सुनता नहीं हूं, मैं अपने आंख से उस इंसान का पूरा बॉडी का लैंग्वेज देख रहा हूं कि वो
बोल क्या रहा है और वो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि कभी कभी जब हम उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे बात है कि आप सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज देखते हो जब आप सुनते हो। तो क्या आप हमेशा उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, ज्यादातर देखते हो, कभी कभी देखते हो, या बिल्कुल नहीं देखते? थिंक अबाउट इट। सिल्की, यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. या टेल मी। So actually, when you are asking these questions, so what is going on in my mind that several times it also depends that like which type of client that is. हाँ, So सो आप accordingly इसका we used to मतलब है कि behave. यू सी द पर्सन एंड देन यू बिहेव। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका This is मतलब है I. कि ये फिर आप हमेशा तो करते नहीं होंगे। Yes, sir. तो Yes, sir. या तो ये ज्यादातर करते हो या तो कभी कभी Yes, sir. करते हो। Yes, sir. तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारे लाइफ में कि हम सामने वाले को देख के हमें लगा कि अरे यार आई डोंट लाइक दैट पर्सन, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो इंसान के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन So no. सिर्फ मैं Yes, sir. उसको पसंद नहीं करता इसलिए मैं उसको नहीं सुन रहा हूँ। So, सिर्फ पसंद नहीं करना is not the one thing. There are several things like if I know that person is like what he or she is going to tell me is not that much important, or that information might I have In already had. short, that And person is not important for you. yes, I could say. Sometime I know that he like what he is going to converse, like what he is going to communicate. So That is uh, not important for you, right? yes, sir. So accordingly, if that things are important and that person is important, or if I am not busy at that time, like several So things many are things, there. so many So things are yes, there. I understand. So you will answer accordingly, okay, considering everything. okay, sir. But what I want to tell people Yes, that sir. you will get, you are not only giving test, in every question you are learning something. Yes, Try to sir. learn something from all the questions, Yes, because sir. all the questions are giving you some clues that we don't listen. We Yes, sir. listen when we want to listen. Yes, We sir. listen when we like the person. We Yes, sir. listen, Now I'm suppose, getting. I'm telling you the truth. Yes, sir. Suppose there are two, I'm not telling it is done by everyone, but most of the people, they do that. There Yes, are sir. two people, one person is Hindu and one person is Muslim. Sometimes people think that I am Hindu, I will listen only Hindu. Think about it. Some people, they do that. Yes, sir. I am Muslim, why should I listen Hindu? So Yeah, I'm agree with this fact, sir. listening is very difficult thing. So just imagine, I am a trainer. You people are listening me right now, listening very effectively. But maybe there are people, they don't listen me. Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग जो मुझे सब बहुत ज्यादा जानते हैं, उससे लगता है यार ये तो आई नो हिम, Yes, sir. वो मुझे नहीं सुनेंगे। हो सकता है कि आपको आपके घर में लोग नहीं सुनते, लेकिन बाहर आपको लोग सुनते हैं। Hmm. इट कैन हैपन, राइट? Yes, sir. सो एक लिसनर वही होता है जो हर जगह वो कोशिश करता है कि वो एक अच्छा लिसनर साबित हो। So is this also for personal life, like it is for professional life, or एब्सोल्युटली, अगर everywhere? भाई, इफ यू आर अ गुड लिसनर, यू आर गुड लिसनर पर्सनली ऑल्सो एंड Yes, प्रोफेशनली sir. ऑल्सो। ऐसा Yes, नहीं sir. हो सकता है कि यू आर पर्सनली वेरी गुड लिसनर एंड प्रोफेशनली नॉट। आप अपने को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, So, कुछ but लोग, generally people tends to like behave professional at professional places. हाँ मैं They वही pay बोल रहा हूँ, attention. आई एम टेलिंग दैट ओनली। मोस्ट ऑफ द पीपल ना, वो अच्छा बनने के चक्कर में बॉस को अच्छे से सुनते हैं, कोलीग्स को अच्छे से सुनते हैं, क्लाइंट्स को Yes, अच्छे sir. से सुनते हैं, और अपनी वाइफ को कभी नहीं सुनते, Yes, sir. अपने बच्चों को कभी नहीं सुनते। Yes, sir. सो अब या तो वो ऑफिस में जो है वही असली पर्सनालिटी है, या उसके Yes, घर में उसका वो असल पर्सनालिटी है। ये yes, दोनों अलग पर्सनालिटी नहीं हो सकता। yes, sir. कोई एक पर्सनालिटी ओरिजिनल है, द घर का जो पर्सनालिटी है ना, दैट इज द रियल पर्सनालिटी। Yes, sir. क्योंकि Yes, उसको sir. कोई प्रेशर नहीं है। Yes, इंसान sir. जब सही चीज करता है,
विदाउट प्रेशर वही उसका सही पर्सनालिटी होता है। Yes. आप मतलब देखो, एक क्या होता है कि आप, एक इंसान चोरी कर रहा है, वो एक इंसान चोरी नहीं कर रहा है, तो मैंने सपोज मैंने किसी से पूछा, Yes. सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं छोड़ो यहाँ रिस्की है, सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने एक स्टूडेंट को पूछा आप चोरी क्यों नहीं करते, आप चोरी क्यों नहीं करते, वो बोलता है नहीं सर चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। और एक इंसान को मैंने बोला अरे तुम चोरी क्यों नहीं करते, उसने बोला नहीं सर चोरी अच्छी चीज नहीं है। दोनों अलग अलग वैल्यूज है। एक चोरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको प्रेशर है कि चोरी करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और एक चोरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लगता है ये बुरा है। तो आप तभी सुनते हो जब आपको प्रेशर होता है, कंपनी में प्रेशर होता है, बिकॉज यू गेट पेड, आपको पैसा मिलता है उसका, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सुनना बहुत अच्छा चीज होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, दैट आप अच्छे हो कि अच्छे बन रहे हो, ऑलवेज इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप अच्छे हो, अगर अच्छे हो तो आप अच्छे लिसनर बनोगे, और अगर आप अच्छा दिखा रहे हो तो आप कभी अच्छा लिसनर नहीं बनोगे। आपका कैरेक्टर आपका लाइफ तय करता है, इसीलिए बोला जाता है ना कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कैरेक्टर के होगे तो अच्छे से सुनोगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, सब कुछ अच्छे अच्छे करोगे तो आप एक अच्छा इंसान बनोगे। इसीलिए बोलते हैं, कहावत है ना, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लोग बोलते हैं अरे कैरेक्टर से कुछ नहीं होता सर, हाथ में पैसे, पॉकेट में पैसा नहीं होगा ना तो कुछ भी सही नहीं होगा। आपका कैरेक्टर सही होगा ना तो आपका डिसीजन सही होगा, आपका डिसीजन सही होगा ना तो आपके पॉकेट में पैसा हमेशा रहेगा। अगर हमारे लाइफ में इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आज के डेट में, इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज? कहीं ना कहीं हमने नॉलेज के साथ खेला है, वी डिड समथिंग जो नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है। ये आप मानो नहीं मानो, दिस इज द रियलिटी। मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई नो किस किस मेरे किस रॉन्ग डिसीजन के लिए मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ये भी मुझे पता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपने को कभी रिस्पॉन्सिबल मानते ही नहीं। देयर आर मेनी पीपल, दे थिंक दैट माय लाइफ इज बैड बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर। तो आप गए। सो गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you be nice, you be a good listener, not because कि आपको प्रेशर है, you be a good listener because it is important, it is nice, it is right। ये अच्छा है, ये सही है, और ये जरूरत है। You know, that is important. Okay, let's go ahead guys, we have to complete the whole session also. We'll go for the next question. I let the customer finish what he or she is saying before replying। मैं सामने वाले को बोलने का मौका देता हूं, उसको कंप्लीट बोलने का मौका देता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं। I let the customer finish what he or she is saying before replying। Please write your answer। मैं हर इंसान को पूरा सुनता हूँ। आज बहुत लोग होते हैं ना, सामने वाला बोल रहे हैं हाँ 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 मेरे को पता चल गया तुम क्या बोलने वाले थे, मुझे पता चल गया, हाँ अब चुप करो, अब चुप रहो, मैं समझ में आ गया। They never let other people speak, they stop other people। कभी कभी शायद हम भी गलती से ऐसा कर देते हैं, अरे पता है तुम क्या बोलोगे मुझे पता है, अब चुप रहो अब। नो, यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू लेट द पीपल स्पीक। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझे पता है वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन क्या पता वो इस बार कुछ अलग बोल सकता है। यू नेवर नो। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आई लेट द स्पीकर फिनिश, मैं सामने वाले को फिनिश करने का समय देता हूं। हमेशा देता हूं, ज्यादातर देता हूं, कभी कभी दे देता हूं, बिल्कुल नहीं देता। कोई मेरे सामने कैसे बोलेगा भाई, जब मैं हूं तो और कौन कैसे बोल सकता है? एनी क्वेश्चन? आज के बाद
अगर आप लोग एक अच्छे लिसनर बन गए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। लेकिन आप लोग के शक्ल में थोड़ा भी स्माइल नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू पीपल थिंकिंग? एग्जाम दे रहे हो, जब लग रहा है कि सच में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसको देना है, नो अच्छा नंबर लाना है। या पूनम, यू वांट टू से समथिंग? Actually, why the smile is not on our face? Actually, problem is that the situation you are giving is very complicated. You are saying good listening is very good. You have to listen each and everyone. Okay? It seems that if you listen something, you grab the things from the people. That's why, na, you said, na, if you listen, you will get the knowledge. So how समथिंग यू विल गेट, विच इज इम्पोर्टेंट। something we will get? How it can be good when I am listening a person who is drinker? Okay, and he's telling the benefits of alcohol, कि क्या क्या benefits होते हैं, what he is getting from the alcohol. So what is the sense of listening him, and what will I get if I will listen him? So that time I should be a good listener. If इफ a person is समबडी bad, is alcoholic, or have a bad character, and you are saying something, oh, it's very good, being alcoholic is good, alcohol relax your body, he is giving the benefits of alcohol. So is there any point to listen him? So you are saying that you are judgmental, you become judgmental when you listen, you decide, okay, I have to listen this person, I have not to listen this person. So it's how not can we? about, it's not about others, it's about me। इट्स नॉट अबाउट दूसरे क्या है, क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आप अगर सुनोगे तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये आपके हैबिट को बनाएगा, जिससे यू कैन लिसन मोर पीपल। हो सकता है उससे फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको जो सुन, आप उसको इतने दिन नहीं सुने हो, लेकिन हो सकता है कि आप सुनोगे तो कुछ आपको मिल जाएगा। इवन हो सकता है सामने वाला को तो पता था कि आप नहीं सुनोगे, लेकिन जैसे ही आप एक ड्रंकर को सुनने लगोगे, उसको भी लगेगा कि यार सामने वाला इंसान से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो मुझे सुनेगा। इंस्पायर होगी सर देन? कैसे इंस्पायर हो जाएगी? आपका अपना डिसीजन मेकिंग नहीं है क्या? नहीं, वही आप कह रहे हैं ना कि आप सुनिए आई उसको एम और आप टेलिंग, उससे ग्रैब करेंगे। लिसन एवरीवन। आई एम नॉट टेलिंग कि जो भी बोल रहा है उसको करो। You listen everyone, you understand everyone, you listen everything, but do what you feel right. Here we are not talking about कि उसको सुनने के बाद क्या करोगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लिसनिंग का। अगर लिसन करेंगे तभी तो आइडियाज आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, और इतना उसके बाद आप जज करो कि क्या सही है क्या बुरा है। लेकिन आप पहले से जज मत करने जाओ उसको। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जाम्पल, एक आई एम गिविंग यू वेरी गुड एग्जाम्पल। हर इंसान की लाइफ में ना एक अच्छा और बुरा दोनों कैरेक्टर होता है। सी आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, समटाइम्स आई ऑल्सो ड्रिंक। रेयर, साल में हो सकता है 3 बार 4 बार, कहीं दोस्तों के साथ या कहीं पे बैठ गया, एंड चलो मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जबरदस्ती पिला देंगे, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों के साथ, अपने कुछ सिलेक्टेड दोस्त हैं उसके साथ बैठ के वो टाइम को स्पेंड करने में अच्छा लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रिंक इज गुड, आई एम टेलिंग आई डू दैट। आई डू रेयरली बट आई डू दैट। अब मैं बोलने के अब जा रहा हूँ, प्लीज लिसन। सपोज मैं साल में हो सकता है 3 या 4 बार ऐसा मोमेंट आता होगा। तो सोचिए एक बार मैं बैठ गया और उस वक्त मुझे पूनम शुक्ला जी ने देखा। पूनम शुक्ला शायद रोड से जा रही थी, उनको देखा, अरे ये लोग क्या कर रहा है, सो बैड दे आर। ऐसे देख, उसको पता नहीं कि एक दिन मैं उसका टीचर बनने वाला हूँ। ठीक है, तो पूनम जी ने देखा, बोला छी 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 व्हाट दे आर डूइंग, करके निकल गई वहां से। अब उसको एक दिन ऑनलाइन में मैं दिख गया कि मैं फेसबुक में ऐड दे रहा हूं कि भाई यू ज्वाइन आवर क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास, इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब पूनम जी को याद आ गया, अरे यार ये तो वही पियक्कड़ है, आई सॉ हिम ऑन दैट डे। सो वो मुझे एक दूसरे तरह से देखेगी, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत था।
गलत था नहीं, उनका फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव था। जब फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम उसके तरफ जाते ही नहीं और उसके दूसरे चीजों को कभी देखने भी नहीं जाते। हम पहले से ही एक दिमाग में बना देते हैं कि ये इंसान को मेरे को नहीं सुनना है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो ड्रिंक कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो जो हमें नहीं पता, और कभी हम उसके तरफ गए नहीं जानने के लिए, क्योंकि हमको वो पहले नजर में ही खराब लगा। और क्या पता सब लोग दारू पी रहे थे, मैं शरबत पी रहा था, मैं दोस्तों को बोला नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं नहीं पीता हूं। हो सकता है मैं शरबत पी रहा था लेकिन उनके साथ था बोल के आप समझ ली कि मैं भी पी रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, इसीलिए बोलते हैं कि पहले से हर दिन जब भी मैं किसी से मिलूंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और बहुत डिफिकल्ट बात बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी आप किसी इंसान से मिले, ये जरूर समझे कि अगर किसी से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सारा जीवन उससे आपको नेगेटिव वाइब्स ही आएगा। उससे आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहा है बिकॉज जरूर उसने कुछ नेगेटिव किया है, दैट इज द रीजन। बट इसका मतलब नहीं है कि वो इन फ्यूचर कभी और अच्छा चीज नहीं करेगा। तो उस समय आपको जैसे नेगेटिव किया था तो नेगेटिव आपने बोला था, तो जब पॉजिटिव किया था तो आपको पॉजिटिव भी बोलना पड़ेगा उसको। तो अपने थॉट्स को हमेशा चेंज कीजिए, उसको स्टिक मत रखिए कि जो खराब है वो जीवन भर खराब ही रहेगा। संध्या, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। Never be judgmental. Yeah, that's what I I usually never say. judge people. I never People judge people. change, people change in seconds. आज मैं खराब हूं, कुछ ऐसा हो गया मेरे लाइफ में कि मैं अच्छा हो गया, लेकिन जिसने मुझे खराब के समय देखा उसके दिमाग में मैं हमेशा ऐसा खराब ही इंसान हूं। इसीलिए बोल रहे हैं कि बी अ गुड लिसनर। हो सकता है कि जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हो उसको भी आप पसंद करने लगो। यू नेवर नो दैट। थिंक अबाउट इट। एक एक इंसान है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से उसको देखते हैं। आप सोचो, थिंक अबाउट इट। अगेन मैं महाभारत का एग्जांपल लूंगा कि जब कृष्णा बैठे थे और एक तरफ था दुर्योधन और एक तरफ अर्जुन। अब बात चल रहा था कि कृष्णा को कौन लेगा अपने तरफ। कृष्णा ने पहले ही हाथ उठा दिया, भाई मैं तो लड़ने वाला हूं नहीं। अब उसको लगा यार ये लड़ने वाला है नहीं, इसको लेके क्या करेंगे। और अर्जुना को लगा नहीं भाई, हम कुछ भी हो मेरे लिए उनका रहना ही बहुत है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक ही इंसान है लेकिन दो अलग अलग लोग उसको अलग अलग वे से देखते हैं। That's what I'm thinking, जब आप सुनते हो ना तो आप सामने वाले को मौका देते हो कि वो कुछ ऐसा बोले जिससे मैं अपने थॉट्स को चेंज कर सकूं। लेकिन आप अगर लोग को मौका ही नहीं देना चाहते तो वो अलग बात है। लिसनर जो होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ वेरी फ्रैंकली, मुझे पता नहीं अच्छे लोग क्या होते हैं। अच्छे लोग बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो जो लिसन करता है ना वो अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग लिसन नहीं करते। जो लिसन करता है ना वो बहुत स्पेशल होता है। इट इज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी। सब लोग नहीं सुनता है। सब लोग जजमेंटल होता है, सुनता है और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बनाते रहता है। हाँ यार बोल बोल बोल, हमको पता है। तो दे मेक जजमेंटल। बट कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं। अब वो करेंगे कि नहीं वो उनकी बात है, लेकिन वो सुनते हैं, समझते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5, I encourage the speaker to talk by nodding my head and giving other non-verbal clues. मैं जब भी लोगों को सुनता हूं, मैं हमेशा अपने सर को हिलाता हूं कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूं, और अपने बॉडी से उसको बोल रहा हूं कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूं। जैसे बहुत समय लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे करके दूसरे तरफ मुंह कर देते हैं, तो लगता है कि वो नहीं सुन रहा है। लेकिन जब भी मैं सुनता हूं, मैं हमेशा सर को हिलाता हूं क्योंकि हाँ मैं सुन रहा हूं, और अपने बॉडी से उसको बताता हूं कि हाँ मैं सुन रहा हूं बेटा, तुमको, तुम बोलो। तो क्या आप भी ऐसा ही करते हो? आप भी एनकरेज करते हो लोगों को बोलने के लिए, सर हिला के और अपने बॉडी से? हमेशा करते हो? ज्यादातर करते हो? कभी कभी करते हो कि बिल्कुल नहीं करते?
Okay, number 6. If there is any question, anyone, you can raise your hand. आपका जो digital hand है, आप उसे हाथ उठा सकते हो. Number 6. I disregard the client dress and appearance. I disregard the clients. Clients मतलब speaker जो बोल रहा है यहाँ पे वही है. I disregard the speaker's dress and appearance. इसका मतलब है कि अगर मुझे सामने वाले का ड्रेस या उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको नहीं सुनता हूँ. मुझे अगर सामने वाले का ड्रेस पहनावा या उसका अपीयरेंस वो दिख कैसा रहा है, अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसे नहीं सुनता हूँ. क्या आप हमेशा ऐसा ही करते हो या ज्यादातर आप ऐसे ही करते हो? कभी कभी करते हो या नहीं, बिल्कुल नहीं करते? आपके लिए ऐसे मायने ही नहीं रखता है ड्रेस अपीयरेंस, आप सबको सुनते हो. सो आपका क्वेश्चन है कि मैं उनको नहीं सुनता जिनका अपीयरेंस या ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगता. सो नाउ इट इज योर कॉल. आपका आंसर क्या होगा? बहुत लोग हैं जो सबसे बात नहीं करते और सबका नहीं सुनते. घर पे दूध वाला आए, घर पे जो बर्तन साफ करती है या घर साफ करता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं सुनते. क्यों सुनो भाई उनको? कौन है वो मेरे सुनेंगे, मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे, मैं उनको क्यों सुनूं? ऐसा होता है, होते हैं कुछ लोग, वो देख के सुनते हैं. जो मेरे स्टेटस का होगा मैं उनको सुनूंगा, जो मेरे स्टेटस का नहीं होगा मैं उनको नहीं सुनूंगा. ऐसा लोग होते हैं. तो क्या आप भी ऐसा ही करते हो? अच्छी सी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या सही है क्या गलत है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम क्या करते हैं. सो ये आपका आंसर होना चाहिए. ओके, लेट्स गो फॉर नंबर 7. आई मेक आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर. मैं जब भी सुनता हूं मैं उसके तरफ देखता हूं. मैं जब भी सुनता हूं मैं सामने वाले के तरफ देखता हूं. हमेशा देखता हूं, ज्यादातर देखता हूं, कभी कभी देखता हूं. नहीं, देखने का क्या जरूरत है भाई, कान है सुन रहा हूं, देखना भी पड़ेगा. एनी क्वेश्चन? Normally in my class, I want people to think. I want people कि वो कुछ सोचे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं पता नहीं. एटलीस्ट मेरे क्लास में एटलीस्ट हम लोग सोचे कि क्या कर रहे हैं हम लोग. What we are doing in our life. Are we really doing what is right? Or are we just doing what I feel right? There are some people. Okay, let's go ahead. Number 8. I am alert to the client's underlying feelings as well as the fact. जब भी मैं किसी को सुनता हूं, अंडरलाइंग फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करता हूं. जो वो नहीं बोल रहा है लेकिन मैं उसको भी समझने की कोशिश करता हूं. अंडरलाइंग फीलिंग्स मतलब वो जो बोल रहा है उसके पीछे जो उसका फीलिंग है उसको भी आप समझने की कोशिश करते हो. हमेशा करते हो, ज्यादातर करते हो, कभी कभी करते हो, बिल्कुल नहीं करते. थिंक अबाउट इट. एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं इसमें. व्हाट हैपेंड, एक ऑफिस की बात बता रहा हूँ. एक ऑफिस था, ऑफिस में एक बॉस काम कर रहा था, उसकी पूरी टीम का एक मीटिंग चल रहा था. ओके, एंड इट वाज जस्ट, सॉरी ऑफिस नहीं था वो, तो वर्क फ्रॉम होम था. एक ऑफिस, मतलब ऑफिस का काम चल रहा था घर पे. एक जो बॉस है वो, मतलब बॉस, उसके साथ साथ बहुत सारे कलीग्स वो लोग काम कर रहे थे. तो उनमें से एक जो कोलीग था जो घर से ऑपरेट कर रहा था, वो काम करते करते, मीटिंग चल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, अचानक से उसका लड़का आ जाता है, छोटा बच्चा,
बहुत छोटा सा, 4 साल 5 साल अप्रोक्स। वो आके बोलता है, पापा 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 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। तो वो काम कर रहा है, वो बोला, बेटा अभी काम चल रहा है, प्लीज बाद में आना। बोलता, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और मीटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो वो मीटिंग में बोलता है, एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जस्ट मिनट करके वो उस बच्चे से बात करता है, कुछ बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात था, उतना भी बड़ा कोई बात नहीं था, बट वो फिर आ जाता है तो उसका बॉस को ना, बॉस हंसते हंसते, बॉस लोग ना आजकल के बॉस डांटते नहीं है, वो घुमा फिरा के पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, आपके कारण सब लोग वेट कर रहे हैं, आप अपने बच्चे का सुन रहे हो, घर पे काम कर रहे हो आप। तो बोले कि नहीं सर, वो मेरे बच्चे को कुछ इम्पोर्टेंट बोलना था। तो इट वाज, तो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे हमारे मीटिंग से भी इम्पोर्टेंट, मैंने बच्चे को एक ऐसा चीज बोलना था जो मीटिंग से भी इम्पोर्टेंट है। तो उस कलीग ने बोला कि सर, मेरे बेटे ने जो मुझे बोला वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं नहीं था, ना ही आपके इस मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरे बेटे ने जो मेरे को बोला, मुझे रोका कि मुझे उसको, मैं अपने पापा को कुछ बोलूंगा, सो इट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर माय सन। सो मैंने सिर्फ उसको सुना नहीं, मैं उसके अंदर में क्या फीलिंग है कि मैं कुछ बोलूंगा और मेरे पापा सुनेंगे, तो वो अंदर की फीलिंग को भी मैं समझने की कोशिश किया। सो द सेम क्वेश्चन गोस टू यू। जब आप लोगों को सुनते हो तो क्या उनके अंदर की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हो, भले ही वो फीलिंग सिली है, कुछ भी है, बट फिर भी आप उसे समझने की कोशिश करते हो? हमेशा, ज्यादातर, कभी कभी, या बिल्कुल नहीं? आई बिलीव यू हैव आंसर्ड द सेम थिंग. Okay guys, see, I'm trying to give some, some real life situations so that आप अपने आंसर को करने में आपको भी सहूलियत हो, you can give the answer more easily. Okay, number 9. I make encouraging listening noises. I see. Oh yes. अच्छा. Oh, जब भी मैं सुनता हूँ ये सब सारे साउंड को मैं यूज करता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ, ज्यादातर करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, या बिल्कुल नहीं करते? कभी कभी होता है ना, हमारी लाइफ में कोई सामने वाला कुछ बोलने आ रहा है तो हम लोग उसको सुनते हैं, बोलते नहीं, आवाज निकालते हैं कि अच्छा अच्छा, फिर ओ, उसके बाद ओके, अच्छा, दिस काइंड ऑफ साउंड वी यूज। तो डू यू यूज दिस काइंड ऑफ साउंड व्हेन यू लिसन पीपल? थिंक अबाउट इट। हम तो सोचे थे कि लिसनिंग मतलब भाई कान में जो घुसा वही लिसन, लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग मेनी थिंग्स, listening is a very important part. Okay, number 10. I keep my mind on what the customer is saying or what the speaker is saying. मैं हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखता हूं, मैं क्लोज नहीं रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं सुनूंगा, मैं हमेशा अपना दिमाग खोल के रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पे भी मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है, और वो किसी से भी मिल सकता है, चाहे वो कोई भी हो। मैं हमेशा अपना दिमाग खोल के रखता हूँ, मैं दुश्मन की भी सुनता हूँ, मैं दोस्त की भी सुनता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ, करता अपना हूँ लेकिन सुनता सबका हूँ। मैं अपने दिमाग को खोल के रखता हूँ जब भी मैं सुनता हूँ। द क्वेश्चन इज दिस, मैं अपना दिमाग हमेशा खोल के रखता हूँ जब भी मैं सुनता हूँ। हमेशा, ज्यादातर, seldom, never. Guys, we are left with only 4 questions. Okay, let's go ahead with the next question. Number 11. I take notes of the key points. मैं हमेशा की पॉइंट्स को लिख लेता हूँ, भूल गया तो? जब भी मैं किसी को सुनता हूँ, अगर मुझे लगे कि वो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है तो मैं उसे लिख लेता हूँ, अगर भूल गया तो? मेनी पीपल दे थिंक कि मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं।
और जब आप लिखोगे ना तो सामने वाले को भी लगेगा कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जरूरी नहीं कि लिखने से आपको आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, जरूरी नहीं, ऐसे भी आप अच्छे सुन सकते हो। लेकिन आप सोचो, आप जब लिखना स्टार्ट कर देते हो ना, तो सामने वाला जो बोल रहा है वो और अच्छे से अपने आप को बोलने की कोशिश करता है। और वो जितना अच्छे से बोलने की कोशिश करेगा, आप उतने अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे। सो आप अगर, इवन मैं भी अगर आप लोग को बोल रहा हूं कुछ और आप जल्दी जल्दी लिख भी रहे हो, तो मुझे लगेगा कि आप बहुत अटेंटिव होकर मुझे सुन रहे हो। That's what. Okay, next. Number 12. I summarize the understanding of the conversation. तो जैसे ही आप किसी को सुन लेते हो, आप एक समराइज करने के लिए एक आप पूरा उसको समराइज करते हो। तो सर, आज हमने सीखा कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, हमें अपनी आंखें, हमें अपनी बॉडी, हमें अपना दिमाग सब कुछ खोल के रखना है, ताकि हम सामने वाले को सिर्फ सुने ही नहीं, उसको समझे भी, उसे फील भी कर पाए। यही ना सर? तो आप उसको, आपने आज जो भी सीखा उसको आपने समराइज किया, तो उससे मुझे पता चला कि चलो भाई, आपने अच्छे से सुना है, आपने अच्छे से सीखा है। तो यू समराइज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आप हमेशा जब भी किसी को सुनते हो, आप एंड में उसको समराइज करते हो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, आपने अच्छे से सुना है उसको। Okay, let's go for the next. अच्छा, ये often, seldom, never. This is very important. I mirror the customer's body, the speaker, customer मतलब speaker. Huh? I mirror the customer's speaker's body language when appropriate to help him or her feel at ease. जब भी मैं किसी को सुनता हूं, मैं उसको मिरर करने की कोशिश करता हूं। मिरर करने की, मिरर करने की, इसका मतलब क्या होता है? मिररिंग। मिररिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कोई बैठ के मुझसे बात कर रहा है ऐसे, तो मैं भी उसके दूसरे तरफ मैं भी ऐसे बैठा हूं, जैसे एक मिरर के जैसे हम लोग बैठे हैं। ऐसा कहा गया है कि जब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें भी नहीं पता, उनकी बॉडी लैंग्वेज सेम हो जाती है, वो लोग का बैठने का तरीका तक सेम हो जाता है। बैठना छोड़ो, उसकी सांसों का जो स्पीड है वो भी मिल जाता है, दोनों का ही सेम चलता है। इट इज कॉल्ड मिररिंग। इट इज कॉल्ड मिररिंग। सपोज कोई सामने ऐसे बैठा है और मैं भी अगर इस तरफ ऐसे करके खड़ा होकर उसको सुनूं, तो उसको भी एक इनडायरेक्टली एक रेपो बिल्ड होता है। कभी कभी ऐसा भी दिख गया है कि कोई अगर आस्ते आस्ते बात कर रहा है, पता है सुभाष जी, मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है, और मैं भी उसके आवाज को भी मिरर कर रहा हूँ, अच्छा आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हमारा जो आवाज का भी जो लेंथ, पिच है ना, पिच भी सेम होने लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज कॉल्ड मिररिंग। अच्छा, मिररिंग का मतलब ये नहीं कि सामने वाला नाक में उंगली किया तो आप भी नाक में उंगली किए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे मिररिंग का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो कि वो भी अगर बैठा हुआ है तो आप भी बैठो उसके तरफ करके। अगर वो खड़ा होकर बात कर रहा है तो आप भी खड़े हो जाओ, आप उसके जैसे रहो, उसके जैसे स्पीड में बात करो। इससे सामने वाले को आप जल्दी कन्विंस कर पाओगे। ठीक है? ओके। सो यू मिरर द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज। आप बॉडी लैंग्वेज को देखते हो और उसके हिसाब से बैठते हो, ताकि आप और उनके बीच में जो बातचीत हो वो बेटर हो। आप हमेशा ऐसा करते हो? ऑफन करते हो? सेल्डम करते हो? या नेवर? थिंक अबाउट इट। Okay guys, we are going for the last question. Last
but not the least, number 14, I consider the customer's point of view. I consider the speaker's point of view. मैं हमेशा सामने वाले को जब सुनता हूं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उस चीज को भी समझने की कोशिश करता हूं. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं सामने वाले को जब सुनता हूं, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी होता है ना कि वो बोल रहा है कि घर पे ये बनेगा, मैं बोल रहा हूं नहीं घर पे ये बनेगा, तो वो क्यों बोल रहा है उसको समझने की मैं कोशिश करता हूं. आई कंसिडर कि वो जो बोल रहा है वो भी उसके हिसाब से सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे हिसाब से भी सही है. सो आई कंसिडर द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैं उस सामने वाले के हिसाब से सोचने की कोशिश करता हूं हमेशा. ऑफन, seldom, or never. These are the life questions which I have asked you today. These all questions will lead you to make you feel that are you a good listener or not. Because if you become a good listener, your life will be better, easy, and you can make others' life also better. So guys, now we'll go for the scores. I believe आपने every time, often, ये सब सारे options को सारे question number के बगल में जरूर लिखे होंगे. Now आपको क्या करना है? अगर आपने always लिखा है तो वहां पे 4 लिखना है आपको. अगर आपने often लिखा है तो often is 3. अगर आपने seldom लिखा है तो it is 2. अगर आपने never लिखा है तो that is 1. You do this first. प्लस नहीं करना है अभी बस मार्किंग करना है. 4, 3, 2, 1. अगर एवरी टाइम है, ऑलवेज है तो 4. अगर ऑफन है तो 3. सेल्डम है तो 2. 1 है तो नेवर. आई बिलीव आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा. To be an effective listener, you need to use your body and your mind to encourage open dialogue. Guys, this is very important. Today आपने हर सवाल को अगर अच्छे से देखा है, हर सवाल में कुछ एक लर्निंग था आपके लिए कि whenever you try to listen everyone, you should not only focus कि भाई मेरे को उनको सुनना है, you should also focus कि मुझे उनको देखना है, मुझे उनके जैसा अपने बॉडी को रखना है, मेरे को अपने दिमाग को खुला रखना है. सोचिए, there are many things which plays great role in listening. और हमें तो लगता था लिसनिंग तो भाई कान से होता है और क्या होता है, बट लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट इजी. सो गाइज, आई बिलीव कि आपने हर क्वेश्चन के बगल में आपने मार्किंग को लिखा है. अभी आपको क्या करना है, प्लीज लिसन. There are 14 questions. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. आपको क्या करना है, जितने ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स जितने हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जितने ऑड नंबर्स हैं, आप ऑड नंबर्स के जितने नंबर है ना, ऑड नंबर में जितने 4, 3, 2, 1 आपने लिखा है, सो सबको प्लस कीजिए. ऑड नंबर्स के जो आपके मार्क्स हैं उनको आप प्लस कीजिए टोटल. और इवन नंबर के जो मार्क्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अलग से आप प्लस कीजिए. तो ऑड का अलग कैलकुलेशन कीजिए एंड इवन क्वेश्चन नंबर्स का आप अलग से कैलकुलेशन कीजिए. उसके बाद हम लोग आपके स्कोर पे आएंगे. सो आई गॉट द स्कोर राइट नाउ.
Rupa Vishwanath 22, 16, Shubhra Banerjee 20 and 19. So these are the score I have got. Not everyone has written. Okay, now you please listen. Now I'm going to tell you that what does your score depicts. आपका score क्या बता रहा है यहाँ पे? Silky 22-20, Rupa Bhattacharya 17-23. Okay, let's go ahead and try to understand what your score depicts. Understand this. Total the point you have scored for statement 1, 3, 5. Odd numbers. अगर आपका odd numbers 21 और more है, इसका मतलब है कि जब आप सुनते हो, आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को भी इवैल्यूएट करते हो और उनको यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस पीपल. सिर्फ सुनते नहीं हो, आप उसके बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करते हो और वो उनके अंदर के फीलिंग को भी आप समझने की कोशिश करते हो. सो इफ योर स्कोर इज 21, दैट मीन्स you always try to understand the body language, the non-verbal signals, and you try to read what is there inside. If your score is 20 or less, अब 20 is very close to 21, तो अगर आपका marks 20 है, इसका मतलब है कि you are very close to 21. That is very good. But still, अगर आपका 20 से कम है, इसका मतलब है कि आप उतना नहीं सोचते सामने वाले के बारे में, आप बस कान से सुनने की कोशिश करते हो. उतना दिमाग खुला रखना है, बॉडी भी देखना है, ये सब में आप दिमाग नहीं लगाते. यू डोंट सी बॉडी लैंग्वेज इफ योर स्कोर इज लेस देन 20. Guys, this is very important. If you are getting anything less than 20, it means you have to understand your speaker. You have to understand the body language of the speaker. सिर्फ सुनने से नहीं होगा. You have to understand that person. Okay, now we'll go to the even numbers. जैसे odd numbers का मतलब होता है non-verbal signals, मतलब body language, feelings. But जो even numbers का calculation है, that calculation talks about how attentive listener you are. आप कितने अच्छे से सुनते हो, अब आपका तरफ है, आप सुनते कितना अच्छे हो. So guys, if your total point you have scored in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 question number, then your score is 21 or more, it means you understand what speaker is saying. You are an active listener. आप काफी attentive होके और active होके आप सामने वाले को सुनते हो. आप जब सुनते हो तो काफी एक्टिव होके सुनते हो. एंड इफ योर स्कोर इज 20 और लेस, अगर आपका 20 और लेस है इवन नंबर में, इसका मतलब है कि आप कभी कभी सुनते सुनते भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. आप सुनते सुनते you think about anything else. So even 20 is also okay, but if it is less than 20, then you have to work on listening part. So guys, today you have got to know that how good listener you are